عشق و محبت اعلیٰ حضرت طے کر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم نشور دستخیر جہاں غم سار زماں سید سرورہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، معزز علماء کرام اور اس جامعہ کے طلباء، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کا جو شیڈول امتحانات کا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اور خوبصورت آواز میں اور اچھے لہجے میں آپ نے قرآن مجید برہان رشید کا جو آپ سبق لے رہے تھے آپ نے امتحان اچھے نمبروں سے دیا۔ اللہ پاک مزید آپ کو عروج عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کامیاب اور بہتر شخص اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے اور بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو سب سے اعلیٰ اور بہترین شخص ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں وہ شخص ہے
کہ जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप उन्हें कुरान सीखने वालों में से हैं कि जिनकी अजमत और शान प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान फरमाई है। और फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अली शान भी है कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर रब जुल जलाल इंसान को 10 नेकियां अता फरमाता है। और आप अंदाजा करें कि हमने दिन के अंदर जो हमारी क्लास का टाइम होता है हिफ्ज़ की क्लास का, इसमें हमने 1, 2 या 10 या 20 हर्फ नहीं पढ़ने, बल्कि जो हमारे शेड्यूल के मुताबिक होता है, हमारा सबक होता है, सबकी होती है, मंजिल होती है, उसमें हम बेशुमार हर्फ पढ़ते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद देखना भी इबादत है, देखने पर भी रब जुल जलाल अजर व सवाब अता फरमाता है। और दूसरी तरफ रब जुल जलाल की दी हुई तौफीक से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से हम तो कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, हम पर रब जुल जलाल किस कदर करम नवाजी फरमाता होगा, इंसान इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। और इस लिहाज से खुसूसी तौर पर आप तुलबा के लिए कि आप जितना हो सकें कुरान मजीद बुरहान रशीद को टाइम दें। एक दुनिया की मिसाल है कि इंसान जिसको टाइम देता है, और टाइम भी इंसान उसको देता है जिसके साथ प्यार होता है, मोहब्बत होती है। जब इंसान किसी को टाइम देता है तो जाहिर सी बात है वो उससे मोहब्बत करता है। अगर आप कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे तो कुरान आपके साथ मोहब्बत करेगा। और यही इंसान की दुनिया के अंदर भी कामयाबी है, और कल क़यामत वाले दिन भी इंशाअल्लाह वही इंसान कामयाब होगा। और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सुन्नतों को अपनाना, और फिर प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करे। नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की हर रोज़ तिलावत करना, ये कोई मजबूरी समझ कर नहीं, बल्कि हमने कुरान के साथ मोहब्बत करनी है, हमने कुरान को टाइम देना है। अगर हम कुरान को टाइम देंगे, वक़्त देंगे, तो इंशाअल्लाह कुरान हमें अच्छे से याद रहेगा। और ये ख़ास तौर पर तुलबा के लिए होता है, क्योंकि हमने जब यहाँ से छुट्टी होती है तो बाज़ुकात इल्ला माशाअल्लाह तुलबा होते हैं कि वो दाएं बाएं आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कोशिश फिर भी करनी है कि जहाँ पर भी हों, कहीं आते हैं जाते हैं, तो अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान पढ़ने की पाबंदी करेंगे, तो आपकी तरफ देखकर भी और भी आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, वो भी इस चीज़ को देखेंगे कि यार ये हमारा बच्चा, हमारा दोस्त कितना अच्छा है, जो नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, और ये इस कदर अपने आप को साफ सुथरा रखता है, लिबास अच्छा पहने, खुशबू लगाएं, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक वैसे भी प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि जो निफ्स ईमान है वो इंसान का अपने आप को साफ सुथरा रखना है। तो लिहाजा इस लिहाज से आप कोशिश करें, और ख़ास तौर पर अपने असातिज़ा की इस लिहाज से आप अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करें, उनके साथ अच्छे से सलाम दें, उनके आगे ना चलें बल्कि अपने उस्ताद के पीछे चलें, हाथ बांध कर चलें। क्यों? क्योंकि उस्ताद वही है कि जो आपको दीन की तरफ लेकर आया, आपको दीन पढ़ा रहा है, कुरान सिखा रहा है, और ये कुरान का भी हुक्म है और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हुक्म है कि अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करना, उनके साथ अच्छे से उनके साथ बातचीत करना। अगर कोई मुश्किल है तो उस्ताद साहब से आप अर्ज़ करें, इंशाअल्लाह वो आपकी मुश्किल को दूर करेंगे। दुआ के खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हमें नेकी के कामों के अंदर
بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.